ਮਾਪਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾ ਜਕਾਰਾ ਸ਼ਿਰੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਮਾਨ। बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਾਂਤਾ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਚਾਹੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਘੁਲੇ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਐਵੇਂ ਨਿਭਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਾਂਤਾ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 21 ਸਤੰਬਰ 1945 ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮਪਾਲ ਗਰਗ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਰਗ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 29 ਜੂਨ 1946 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮੱਤੇਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸਤਿਆ ਦੇਵੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਹੁਣੇ 23 ਫਰਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਸੀਮਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸੈਟਿੰਗ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਮੱਤੇਵਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਨ 1973 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਚੰਗੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 1990 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1997 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਫੈਕਟਰੀ KTM ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਸਨ ਅਤੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਧਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਾਂਤਾ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਮਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਸਰ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡ ਗਏ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਾਂਤਾ ਸਿੰਗਲਾ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। फूल की तरह होती है और जो मनुष्य की आयु है वो 1000 वर्ष भी अगर हो जाए तो वो बहुत थोड़ी है। ये सब जानते हुए भी किसी को धैर्य नहीं है। हे गुरु जी, मनुष्य की आधी आयु सोकर बीत जाती है, आधी आयु काम में चली जाती है, आधी आयु आलस से बीत जाती है और जो थोड़ा समय बच भी जाता होगा तो बालकपन में चला जाता है, रोग में चला जाता है, बुढ़ापे में चला जाता है। इस कारण जीवन बिल्कुल निष्फल हो जाता है। हे गुरु जी, जल में से कच्चा घड़ा जैसे सने सने गल जाता है, समाप्त हो जाता है, वह गुलाम प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार क्षण क्षण में ये शरीर क्षीण होता रहता है, जो गुलाम प्राप्त नहीं होता है। बालक हो, जवान हो, वृद्ध हो या कोई गर्भ में स्थित हो, मृत्यु सबको अपना ग्रास बना करके छोड़ती है। इस संसार की गति ही ऐसी है। ये जीव अपने शरीर को यहाँ छोड़ करके चला जाता है, तब स्त्री, माता पिता, पुत्र आदि का संबंध किस हेतु से है? हे गुरु जी, अज्ञान से मोहित होकर सभी मनुष्य अपने शरीर, धन, स्त्री, पुत्र आदि में लीन होकर मरते रहते हैं और जन्म लेते रहते हैं। ये कष्ट का विषय है। इसलिए सांसारिक विषयों का अनुराग
सदा के लिए त्याग देना चाहिए। यदि मनुष्य सबका त्याग न कर सके तो सत्पुरुषों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि संत लोग सांसारिक आसक्ति की औषधि हैं। सत्संग और विवेक ये दोनों स्वच्छ आंखें हैं, जिसमें सत्संग और विवेक नहीं है वे अंधे के समान है। हे गरुड़ जी, ये मेरा है और ये मेरा नहीं है, ये दो पद ही बंधन और मोक्ष के कारण है। जब जीव कहता है कि ये मेरा है, इदम मम, तो तब वो बंधन में बंध जाता है, और जब कहता है इदम न मम, तो वह बंधन से मुक्त हो जाता है। इस विचार से संसार से जीव मुक्त हो जाता है, और कर्म भी वही श्रेष्ठ है जो बंधन के लिए नहीं है, ज्ञान भी वही श्रेष्ठ है जो मुक्ति को देने वाला है। सांसारिक कर्म श्रम के लिए हैं और सांसारिक ज्ञान शिल्प में निपुणता प्राप्त करने के लिए है। जब तक कर्म क्षीण नहीं हो जाते तब तक संसार की वासना बनी रहती है। हे गरुड़ जी, श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण ने कहा है ओम इति एक अक्षर स्वरूप ब्रह्म का उच्चारण करना चाहिए। मेरे स्वरूप का स्मरण करता हुआ जो देह का त्याग करता है, जो देह त्याग कर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह जो है परम गति को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान और वैराग्य से रहित मनुष्य जिस परम गति को प्राप्त नहीं कर सकते, उस गति को शुद्ध बुद्धि वाले ज्ञानी पुरुष प्राप्त कर लेते हैं। ये गरुड़ जी, धार्मिक मनुष्य स्वर्ग को और पापी पुरुष दुर्गति को प्राप्त करते हैं। यही जन्म मरण का कारण बनता है। मैंने 16 अध्यायों वाले सर्व शास्त्रों का सार एक वृत्तांत आपको कह दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? सूत जी बोले, इस प्रकार श्री हरि के मुख से वचन सुनकर गरुड़ जी ने हाथ जोड़कर बारंबार नमस्कार करते हुए बोले, हे भगवान, हे देव, हे देवेश, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, आपने अमृत में वचन सुनाकर संसार सागर से मुझे पार कर दिया है। मेरे समस्त संदेह दूर हो गए हैं। मैं स्थिर मन हो गया हूँ, मैं कृतार्थ हो गया हूँ। अब इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार गरुड़ जी मौन होकर के श्री हरि के ध्यान में अवस्थित हो गए, और स्मरण करने पर जो दुर्गति दूर करते हैं, पूजा और यज्ञ करने पर जो सदगति प्राप्त करते हैं, और अपनी परम भक्ति से जो मुक्ति प्रदान करते हैं, ऐसे श्री हरि सदा हम सब की रक्षा करें। श्रद्धांजलि हम अनेक रूपों से दे सकते हैं। पुष्प के साथ श्रद्धांजलि दी जा सकती है। मन से भी हम सदा, आजकल समय ऐसा बना हुआ है कि एक जगह एकत्रित होना ठीक नहीं है। तो इन्होंने, मैंने फेसबुक पर मैं पढ़ रहा था, उसका लिखा हुआ था कि आप नई जो टेक्नोलॉजी जूम के साथ भी श्रद्धांजलि उनको दे सकते हैं। हम श्रद्धांजलि मन से दे सकते हैं, वाणी से दे सकते हैं, कर्म से दे सकते हैं। परिवार की तरफ से ये गरुड़ पुराण दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए रखा गया था, जिसे आप भी श्रवण कर लेते हैं। बंधुओं, जो जीवात्मा है तो परम पिता परमेश्वर का ही अंश है। इन्होंने गरुड़ पुराण में पिछले 15 दिनों तक लगातार आता रहा, बड़ी श्रद्धा के साथ श्रवण करते थे, और मैं बीच में थोड़ा जो समझाने योग्य होता था उससे भी समझाता था। गरुड़ पुराण में पहले भी बताया गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी भ्रमत लाख योनि 84। आप गरुड़ पुराण में भी सुन रहे थे कि परमात्मा ने विचार किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। ऐसे विचार करते ही परमात्मा ने सृष्टि का सृजन किया, और हम सब जितने भी इस दुनिया के जीव हैं, जीव जंतु कीट पतंग जितने भी हैं, 84 लाख दुनिया हैं, वे सब के सब परमात्मा के ही अंश हैं। और उनमें 84 लाख योनियों में परमात्मा ने ये कहा है
कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे परम प्रिय हैं, मेरे द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं, लेकिन जो मनुष्य स्वरूप है वो मुझे सबसे प्रिय है। हम सब परमात्मा के सबसे निकट सबसे करीब रहने वालों में से हैं, परम प्रिय हैं। जितना ये समस्त सांसारिक जीव है वो सब के सब ईश्वर की संतान है। जीवात्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है, लेकिन संसार में आकर के आपको हम भूल जाते हैं कि हम उस परम पिता की संतान हैं और हमारा जीवन किस प्रकार का होना चाहिए। जिस तरह कोई माता पिता चाहता है कि मेरे बच्चे मेरी तरह हों, मेरे से भी बढ़ करके हों, उसी प्रकार परमात्मा भी चाहते हैं कि हम जो मनुष्य योनि में हैं हमारा जीवन भी बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छा हो। तो परमात्मा को बड़ी प्रसन्नता होती है। अनेक प्रसंग अनेक सिद्धांतों का वर्णन हुआ है। मनुष्य परमात्मा के द्वारा भेजा गया, वह परमात्मा का अंश है और वो परमात्मा, वो परम पिता परमेश्वर जो हमसे बेहद प्यार करता है, जब वो हमारी ओर देखता होगा, जब वो हमारे कर्मियों को देखता होगा तो वो हैरान होता होगा। वो सोचता होगा कि मैंने इनको क्या करने के लिए भेजा था और ये कर क्या रहे हैं। परमात्मा बिल्कुल खिन्न हो जाते हैं देख करके कि जो मेरी 84 लाख योनियों में सर्वोत्कृष्ट रचना है, इससे बढ़ करके और अन्य कोई शरीर नहीं है। हम अन्य योनियों में भी जाएंगे ये निश्चित है, परंतु अन्य योनियों में हम जिस तरह अभी आपने देखा, हमने हवन किया, पूजन किया, ब्रह्म भोज किया, ये सब के सब कुंडों में आते हैं, नाना प्रकार के छोटे छोटे। यहाँ तक कि हमने जो पूजा की है उसकी सामग्री भी एकत्रित करते हैं और उसे जल प्रवाह करते हैं जिसमें वो जीव उसे फिर करते हैं। इतने यज्ञ हमसे हो जाते हैं, एक काम के पीछे अनेक काम हो जाते हैं। ये सौभाग्य केवल और केवल मनुष्य शरीर को ही प्राप्त है, अन्य किसी को नहीं है। तो परमात्मा तब खिन्न होते हैं जब हम अपना जीवन कुछ और बना लेते हैं। परमात्मा कहते हैं कि ये कर क्या रहा है, हमारा जीवन ऐसा बन गया है। मुझे एक कहानी, एक कथा जो हम और आप सबसे बहुत मेल खाती है, जो हमारे रहन सहन ढंग से बहुत मेल खाती है, उसमें एक प्रसंग आपको सुनाता हूँ। एक बार की बात है कि जंगल में एक शेर का बच्चा अपनी माता से, जो बिल्कुल नवजात शेर का बच्चा था, वो शेर से बिछड़ गया, शेर से बिछड़ गया और जंगल में संयोग से वहां कुछ बकरियां जंगल में घास आदि खा रही थी। तो उस झुंड में वो शेर का छोटा बच्चा था, उस झुंड में मिल गया। बहुत लंबे समय तक उस शेर का बच्चा उन बकरियों के साथ रहने लगा। जो रहन सहन, जो हाव भाव, जो व्यवहार वो बकरियां करती थी, वही वो शेर का बच्चा भी उन बकरियों के जैसे करने लगा। काफी समय हो गया। जब वो शेर का बच्चा बड़ा हो गया, संयोगवश उसे एक बूढ़ा शेर मिला और उस बूढ़े शेर ने देखा कि एक शेर का बच्चा उन बकरियों के साथ रह रहा है। जिस तरह वो बकरियां घास फूस खा रही हैं, उस शेर का बच्चा भी घास फूस खा रहा है। उस बूढ़े शेर को देख करके बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि हम शेर मांस खाने वाले हैं और ये घास खा रहा है, बड़ी शर्म की बात है। उस बूढ़े शेर ने विचार किया कि इसे जगाना चाहिए, इसे बताना चाहिए कि ये कौन है और ये बकरियां कौन है। तो उस बूढ़े शेर ने उस शेर को बुलाया, उस शेर को कहा कि देख, तू मेरी साइड वाला है, ये बकरियां तो दूसरी जाति की हैं, तू इनमें कर क्या रहा है। उस शेर ने कहा कि भाई मैं इन्हीं के साथ वर्षों से रह रहा हूँ, तू मेरा नहीं है, मेरी तो यही है। उस बूढ़े शेर को लगा कि इसे कैसे समझाऊं। उसने काफी प्रयत्न किया कि इसे समझाया जाए।
तो उस बूढ़े शेर ने कहा कि देख, तू दिखने में मेरे जैसा है, जैसे मैं हूँ वैसे ही तू है, जैसे तू है वैसे ही मैं हूँ, हम एक ही जाति के हैं, एक ही इसमें आते हैं। तो शेर उसने कहा नहीं, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो, मैं तो इन्हीं के साथ रहता हूँ, यही मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे इनके जैसा ही रहना है, तुम अपने जाओ मैं अपने जाता हूँ। उस बूढ़े शेर ने कहा एक बार समझ ले, एक बार मेरी बात को ध्यान से सुन ले, और अगर तुझे फिर भी इनके साथ रहना अच्छा लगे तो इनके साथ ही रहना, और अगर मेरी बात अच्छी लगे तो मेरे साथ चले जाना। उस बूढ़े शेर ने कहा कि तू एक काम कर, मैं तुझे आवाज लगाता हूँ, तू भी मुझे आवाज लगाना, मैं तुझे आवाज लगाता हूँ, तू भी मुझे आवाज लगाना, फिर देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। उस बूढ़े शेर ने जैसे ही गर्जना की, उस शेर ने भी वैसे ही गर्जना की, और जितनी वो बकरियां थी वो सारी इधर इधर हो गई, इधर उधर भाग गई, और वो दोनों के दोनों वहां पर अकेले रह गए। उस शेर के बच्चे ने कहा कि मुझे फिर भी यकीन नहीं हो रहा है कि तू और मैं एक ही हैं, मैं उनके साथ ही जा रहा हूँ। बूढ़े शेर ने कहा कि देख, मैं तुझे एक और मौका देता हूँ, ऐसे करते हैं हम दोनों एक तालाब में जाते हैं, और फिर तुझे लगेगा, तू देखना तू कैसा है और मैं कैसा हूँ। तो बूढ़े शेर ने उसे तालाब के पास ले गया और कहा देख, तू भी और मेरी शक्ल में देख, अपनी शक्ल भी देख। जब दोनों ने देखा तो फिर उस शेर के बच्चे को ज्ञान हुआ कि मैं और शेर एक ही हैं। हम अपने जीवन को परमात्मा ने जिस काम के लिए हमें भेजा हुआ है, हम उसी तरह इस शेर के बच्चे की भांति हम भी अपने राह और कर बैठे हैं। जिस राह पर आप और हम ये दुनिया आज चल रही है, सभी लोग नहीं चल रहे हैं, कुछ अच्छे मार्गों पर भी हैं, लेकिन ज्यादा लोगों ने अपने मार्ग भिन्न कर दिए हैं। जो रहन सहन, जो दूसरी और अन्य चीजें हैं, जो हम जिसके लिए हमारी दौड़ है, वो दौड़ हमारे इस शरीर के लिए, हमारे इस शरीर की खुराक नहीं है। जिस तरह जिंदा रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार इस आत्मा की जो खुराक है वो परमात्मा का नाम और परमात्मा का चिंतन करने का है। जो मृत्यु है ये बंधुओं ये आने जाने वाली है, जिसका भी जन्म हो चुका है उसकी मृत्यु अनिवार्य है, उसकी मृत्यु अनिवार्य है। जातस्य से ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। महाभारत का एक प्रसंग है, जब युद्ध होने वाला था, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि हे प्रभु, अब हम दोनों सेनाएं आमने सामने आई गई हैं, तो एक बार मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किन किन से युद्ध करना है। तो तब भगवान ने कहा ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा। भगवान ने अर्जुन का रथ सेना के बीच, दोनों सेनाओं के बीच में ले गए, और अर्जुन ने जब दोनों तरफ देखा कि इधर भी मेरे अपने हैं, उधर भी मेरे अपने हैं, तो अर्जुन ने भगवान को कह दिया प्रभु, मैं भीख मांग करके अपना जीवन यापन कर लूंगा, परंतु मैं इनके साथ युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो मेरे अपने हैं, मैं इन्हें नहीं मार सकता। तब भगवान ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, जिसे तुम मारने की बात कर रहे हो वो तो पहले ही मरे हुए हैं। भगवान ने अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया और कहा कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यते मधुर शोचितुम् अर्हसि। अर्थात जिनका जन्म हो चुका है उनकी मृत्यु अवश्य है, और जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका जन्म भी अवश्य है। मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं, कोई भरोसा नहीं, कालो न याति वयमेव याति। एक बार मृत्यु ने जो है विधि के साथ जाकर के शिकायत की, कहा कि हे विधि देव, जब भी किसी की मृत्यु होती है तो लोग मुझे बहुत लानत देते हैं, गाली देते हैं, मुझको बहुत बुरा और भला कहते हैं। मैं किसी की मृत्यु का कारण अब नहीं बनता, मुझसे ये मेरी जो आपने ड्यूटी लगाई है उसे वापस ले लो, मैं किसी पर मृत्यु का कारण नहीं बन जाता। तो तब विधि ने कहा, विधाता ने कहा, हे मृत्युदेव, अब जब भी किसी की मृत्यु आएगी तो पहले कोई कारण बनेगा। हम देखते हैं जब भी किसी की मृत्यु होती है, पता करो कि किस तरह मृत्यु हुई, पता लगता है कि कोई एक्सीडेंट में चला गया, कोई हार्ट से चला गया, कोई किसी तरह चला गया, कोई ना कोई पहले कारण बन जाता है। कारण बनता है
तो फिर मृत्यु होती है। कालो न याति वैदेव याति, अर्थात काल आता नहीं, हम स्वयं वहां पर पहुंच जाते हैं। विधि ही ऐसी बन जाती है, विधान ही ऐसा हो जाता है जिस कारण हमें जाना पड़ता है। एक बार महर्षि वेदव्यास जी के नाना जी थे, उनका नाम था निषाद राज। निषाद राज जी का आपने नाम सुना होगा, महाभारत का ही प्रसंग है कि निषाद राज मृत्यु से जब वो वृद्ध हो गए तो मृत्यु से बहुत भयभीत रहा करते थे और हमेशा मृत्यु ना हो उसके लिए यत्न किया करते थे कि मैं इस मृत्यु से बच जाऊं। संयोग से एक बार निषाद राज जी को नारद जी मिले और उन्होंने नारद जी से प्रार्थना की कि हे नारद जी, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे कोई ऐसी विधि बताइए जिससे मैं हमेशा जिंदा रहूं। नारद जी ने निषाद राज जी को समझाया, बहुत प्रकार से अनेक उदाहरण दिए कि भाई मृत्यु से बचा नहीं जा सकता है, जो भी संसार में आया है उसको जाना पड़ता ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता। किंतु निषाद राज जी ने उनके पैर पकड़ लिए, कहा कि नारद जी, मैं आपको तब तक जाने नहीं दूंगा जब तक आप मुझे कोई मृत्यु से बचने का उपाय नहीं बताएंगे। नारद जी ने कहा, ये तो भला मेरे पल्ले पड़ गई है। किसी तरह अपना पिंड छुड़वाने के लिए नारद जी ने कहा कि हे निषाद राज जी, आप तो वेदव्यास जी के नाना जी हैं और वेदव्यास जी की सभी लोग बहुत इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं। आप, मुझे लगता है कि वेदव्यास जी को मृत्यु से बचने का कोई न कोई उपाय जरूर आता होगा, उन्हें कोई न कोई बात जरूर पता होगी। वे आपकी इस बात का समाधान जरूर करेंगे। आप ऐसे करो कि अपने जो नाती हैं आपके व्यास जी, उनसे मिलिए। निषाद राज बड़ा प्रसन्न हुआ कि अब तो मुझे एक रास्ता मिल गया है कि वेदव्यास जी जो समस्त ऋषियों के पूज्य हैं, वेदव्यास जी जो देवताओं के भी पूज्य हैं, वो मेरी जरूर मृत्यु का कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे और अब मैं जीवित रहूंगा। निषाद राज जी अपने आश्रम से सीधे व्यास जी के पास चले गए। व्यास जी अपनी समाधि में बैठे हुए थे। जैसे उनके शिष्यों ने निषाद राज जी को आते हुए देखा, सबने आदर और सत्कार के साथ निषाद राज जी को अंदर बैठाया, आसन दिया और आने का कारण पूछा। तो निषाद राज जी ने कहा कि मुझे वेदव्यास जी से ही बात करनी है, मुझे वेदव्यास जी से ही बात करनी है, कृपा करके आप वेदव्यास जी को बुला दीजिए। वेदव्यास जी का जैसे ही संध्या वंदन आदि हुआ तो वेदव्यास जी ने पूछा कि हे नाना जी, आप किस कारण से यहाँ आए हैं, आने का कारण बता दो, या तो आप कितने वृद्ध हैं, मुझे बुला लेते तो मैं ही आपके पास आ जाता। निषाद राज ने कहा कि बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे सीधे आपके पास आना पड़ा। वेदव्यास जी ने कहा कि बात बताओ, क्या कारण है, क्या काम है, किस लिए आप यहाँ आए हैं, वो आप मुझे बताइए। तो निषाद राज ने कहा, हे व्यास जी, आप सभी देवताओं के, सभी ऋषियों के, सभी मुनियों के पूज्य हैं और सब आपका आदर और सत्कार करते हैं, आपकी सबके साथ बनी हुई है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मृत्यु को, मैं मरना नहीं चाहता हूँ और मेरा आपसे निवेदन है, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप मृत्यु देव से जाकर के मेरी मृत्यु को टलवा दीजिए, इसी कारण मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। वेदव्यास जी ने भी कहा, वो समझाया कि नाना जी, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। काफी तरह से समझाने का प्रयास किया, किंतु निषाद राज जी हट करके कहने लगे, हे व्यास जी, आप इतने बड़े ऋषि हैं और पहले तो आप मुझे कोई रास्ता बताओ, और अगर आप रास्ता नहीं बता सकते तो
इसके लिए कोई समाधान निकालिए। वेदव्यास जी ने कहा कि निषादराज जी, ऐसा करते हैं कि हम सीधे मृत्युदेव के पास चले जाते हैं। शायद मृत्युदेव कोई ऐसा रास्ता निकाल दे जिससे कि आपकी मृत्यु टल जाए। निषादराज जी खुश हुए कि अब तो सीधे यमराज के पास, मृत्यु के पास हम जा रहे हैं, अब मेरी मृत्यु निश्चित ही टल जाएगी। वेदव्यास जी और निषादराज जी सीधे मृत्युदेव के पास चले गए। मृत्युदेव के पास जब पहुंचे, मृत्युदेव ने देखा कि निषाद वेदव्यास जी आए हैं। उन्होंने उठ करके उनका आदर सत्कार किया, आसन दिया बैठने के लिए और आने का कारण पूछा। तो वेदव्यास जी ने मृत्युदेव को कहा कि हे मृत्युदेव, मेरे साथ में मेरे नाना जी हैं, ये मरना नहीं चाहते हैं और ये जिद कर रहे हैं कि मेरी मृत्यु को टाल दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। व्यास जी ने कहा कि मैंने इन्हें बहुत समझाया कि मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, परंतु ये फिर जिद कर रहे हैं, माने ही नहीं हैं, इसलिए मैं इन्हें आपके पास ले आया। मृत्युदेव ने कहा कि हे वेदव्यास जी, मेरे पास अगर वो मृत्यु होती तो मैं अवश्य टाल देता, ये मेरे पास नहीं है। मुझे तो कालदेव आज्ञा देते हैं, तब जाकर के मैं मृत्यु का कारण बनता हूँ। तो व्यास जी ने कहा कि हे मृत्युदेव, आप कालदेव के बहुत निकट रहते हैं, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कोई ऐसा रास्ता निकाले कि कालदेव इनके मृत्यु टाल दे। तो मृत्युदेव ने कहा कि ऐसा करते हैं, हम तीनों जाकर के काल के पास चले जाते हैं और उनसे ही इनकी सिफारिश करेंगे, अगर वो चाहें तो इनकी मृत्यु टल सकती है। सारे के सारे कालदेव के पास पहुंचे। कालदेव ने देखा कि वेदव्यास जी आ रहे हैं, मृत्युदेव भी आ रहे हैं, उठ करके उनका आदर और सत्कार किया, आने का कारण पूछा। तो कालदेव, वेदव्यास जी ने कहा, हे कालदेव, कि मेरे नाना निषादराज जी हैं, ये मरना नहीं चाहते हैं और मैं पहले मृत्युदेव के पास गया, इन्होंने बताया कि मेरे पास इसका कोई समाधान नहीं है, तो हम आपके पास आ गए हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि इनकी मृत्यु को टाल दिया जाए। कालदेव ने कहा, हे वेदव्यास जी, मेरे पास में मृत्यु का कोई समाधान नहीं है, मुझे तो यमराज आदेश करते हैं, फिर मैं मृत्यु का कारण बनता हूँ, तो इसमें मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। तो वेदव्यास जी ने कहा कि हे कालदेव, कुछ तो आप करिए। तो उन्होंने कहा, कालदेव ने, ऐसा करते हैं, आप और हम मिल करके यमराज के पास ही चले जाते हैं और उनसे प्रार्थना करेंगे कि इनकी मृत्यु टाल दी जाए। यमराज जी के पास मृत्युदेव, कालदेव, वेदव्यास जी जब पहुंचे, यमराज के दरबार में गए, यमराज ने देखा कि वेदव्यास जी आए हैं, तो यमराज ने उनका आदर और सत्कार किया, बिठाया और आने का कारण पूछा। तो वेदव्यास जी ने कहा, हे यमराज जी, ये मेरे नाना जी हैं, मृत्यु से बहुत भयभीत हैं और हम पहले मृत्यु के पास गए, फिर काल के पास गए, अब फिर हम आपके पास आए हैं। आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ, आप मेरे नाना जी की मृत्यु को टाल दीजिए। तब यमराज ने कहा, हे वेदव्यास जी, मैं मृत्यु का कारण तब बनता हूँ जब मुझे विधि का उपदेश होता है, विधाता का आदेश होता है, मैं तभी जाकर के किसी की मृत्यु का कारण होता हूँ। ये मेरे पास नहीं है, इसमें मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। तो वेदव्यास जी ने उनको भी कहा कि आप, हे यमराज जी, विधाता के आप बहुत नजदीक हैं, आप हमारे साथ चलिए और हम सब विधाता के पास जाकर के अपनी इनकी मृत्यु के बारे में बात करेंगे और उनसे प्रार्थना करते हैं, हम सभी प्रार्थना करेंगे कि इनकी मृत्यु टाल दी जाए। जैसे ही यमराज जी, कालदेव जी, मृत्युदेव जी और वेदव्यास जी विधि के दरबार में पहुंचे, विधाता ने उन सब आए हुए का आदर सत्कार किया, आने का कारण पूछा, कहा आपका यहाँ आना कैसे हुआ। तो वेदव्यास जी ने कहा कि मेरे साथ मेरे नाना जी हैं और वो मृत्यु से बहुत भयभीत हैं, वो मरना नहीं चाहते हैं, इसलिए हे विधाता, हे विधिदेव, आपसे नम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि इनकी मृत्यु को आप टाल दें। विधाता ने कहा, हे वेदव्यास जी,
मेरे पास सभी का जो लेखा जोखा है, जो कर्मों का एक एक हिसाब है, वो सारा मेरे पास, वो सारा डेटा मौजूद है और इनका भी हिसाब मेरे पास लिखा हुआ है। विधि देवता ने वो सारा जो उनका लेखा जोखा था व्यास जी के आगे रख दिया। व्यास जी ने जैसे ही वो लाइन पढ़ी, वहां पर लिखा हुआ था निषाद राज जी की मृत्यु उस क्षण होगी जिस क्षण मेरे सम्मुख मृत्यु देवी आए हुए हों, कालदेव भी आए हुए हों, यमराज भी आए हुए हों, वेदव्यास जी भी आए हुए हों और साथ में निषाद राज जी खड़े हों, उसी क्षण इनकी मृत्यु हो जाएगी। कहने का अभिप्राय ये है कि मृत्यु से हम कोई भी बच नहीं सकते हैं। हमारे सदग्रंथों में कहा गया है, कालो न याति, काल आता नहीं है, वयमेव याति, हम स्वयं उसके मुंह में किसी न किसी तरह चले जाते हैं। कहते हैं कि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, मृत्यु का कोई विश्वास नहीं है। हजारों लाखों वर्षों से ये दुनिया चल रही है। तो जब हम यहाँ पर एक गरुड़ पुराण की कथा करते थे तो मुझे सारे परिवार से कहा करते थे कि आप भजन बोलिए। उस वक्त जितने दिन ये सूतक और पातक के होते हैं, उन दिनों हमें सिर्फ भगवान नाम का करना चाहिए। लेकिन आप सबके श्रद्धा होते थे तो यहाँ पर अंग्रेजी बैठे हुए भजन एक बोल लिया करते थे। मैं इस करके नहीं कहता था कि जब ये पातक आपका निकल जाएगा फिर मैं एक भजन जरूर करूँगा। आपने काफी मुझसे कहा करते थे आए एक भजन, किसी के माध्यम से हम अपने जीवन को जो आज कुछ हो रहा है उसी के माध्यम से कहेंगे। हजारों लाखों वर्षों से ये दुनिया चल रही है और चलती रहेगी। इस दुनिया का दूसरा नाम संसार है। संसार का मतलब है संसरति इति संसार, अर्थात ये संसार सने 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 चलता रहता है, पीछे से आगे और आगे से पीछे इसमें आते रहते हैं। तो हमारा आना जाना लगा हुआ रहता है। कहाँ से आया जाना कहाँ, आखिर कहाँ मुकाम, कहाँ से आया जाना कहाँ, आखिर कहाँ मुकाम, बंदे करने बंदगी करने की काम। हम सब कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, इस बात का भी बेटा, इस बात का प्रूफ आज तक लाखों करोड़ों वर्ष हो चुके हैं, किसी को इस बात का पता नहीं है। और विडंबना ये है कि हम अपने लिए छोटी वस्तु भी अगर खरीदते हैं, एक छोटा मोबाइल भी लेना जाते हैं, तो दुकानदार से कहते हैं भाई इसकी गारंटी कितनी है, दादा जी इसकी वारंटी कितनी है, पहले ये बताइए फिर मैं इसको लूँगा। लेकिन खरीदार को ये पता नहीं है मेरी गारंटी है कि नहीं, कोई वारंटी है कि नहीं। तो उसका हाथ जब तक हम पर है और तक हम हैं, जिस दिन उसका हाथ हमसे निकल जाता है उससे हमारी जिंदगी मेल खाती है, कुछ नहीं रह जाती है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं साथ लेती नहीं, साथ देती नहीं साथ लेती नहीं, साथ देती नहीं साथ लेती
उसका जब जखीरा इधर से उधर जाता था तो 25 से 30 फुटों पर उसके खजानों की चाबियां लदी हुई होती, उसको भी जाना पड़ा। इसीलिए हमारे संत कहते हैं, समझ जरा नादान साथ में कौन है आता, कर भजन भगवान का नाम से जोड़ ले नाता। सांस रुक जाएगी चलते चलते, 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 सम्मा बुझ 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 जाएगी चलते चलते, कम निकल जाएगा रोशनी का, क्यों भरोसा है इस जिंदगी का, क्यों भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं, साथ लेती नहीं, 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 ये किसी का क्यों भरोसा है इस जिंदगी का, क्यों भरोसा है इस जिंदगी का। मैं करूं मैंने किया ऐसा कभी ना बोल, तेरे बिना भी चलती थी तो ये दुनिया बड़ी अनमोल। कभी भी इस बात को अपने आप में नहीं आना चाहिए कि ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं करूँगा, मेरे बाद ये नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। ये दुनिया मैंने बताया कि हजारों हजारों वर्षों से चलती आ रही है। हमारे पहले भी ये दुनिया थी, हमारे बाद भी ये दुनिया रहेगी, और अगर कर सके तो हमें आत्मचिंतन करना है, नहीं तो आए हैं सो जाएंगे, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। सदगुरु क्या कहते हैं कि मृत्यु निश्चित है, जो आए हैं सो जाएंगे। मृत्यु किसी रंग को नहीं देती, मृत्यु किसी राजा को नहीं देती, मृत्यु किसी निर्धन को नहीं देती, मृत्यु किसी धनवान को नहीं देती। मृत्यु जब आती है तो आ ही आती है, लेकिन एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। आपने पुराण में सुना है, भगवान के धर्मराज के दक्षिण द्वार में कौन जाते हैं, अर्थात जो पाप कर्म में निरत रहते हैं, जो परमात्मा से विमुख रहते हैं, वे लोग धर्मराज की सभा में दक्षिण द्वार से प्रवेश करते हैं, और उसको सुनने से, पढ़ने मात्र से इतना डर लगता है, इतना भय लगता है। गरुड़ जी ने जब सारा वृतांत सुना तो वो थर-थर कांपने लग पड़े थे। और एक सिंहासन चढ़ चले, सिंहासन पर कौन जाते हैं, सिंहासन पर वो लोग जाते हैं जो परमात्मा के भक्त होते हैं, जो परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं, दान पुण्य यज्ञ आदि कर्मों में निरत रहते हैं। उन लोगों की धर्मराज की सभा में बड़ी स्वागत किया जाता है। धर्मराज जी अपने आसन से उठकर उन आत्माओं का, उन दिव्य आत्माओं का, उन पुण्य आत्माओं का स्वागत करते हैं। कहते हैं कि हे सभासदों, देखो मेरे दरबार में एक धनवान आया है, एक परमात्मा का जो चिंतन करने वाला था वो आया है, मेरे दरबार में परमात्मा का भक्त आया है, मेरे दरबार में ये यज्ञ पुरुष आया है, तो यज्ञ आदि निरंतर लगे रहते हैं। समय समय पर हमें गृहस्थ आश्रम में रहते हुए परमात्मा के चिंतन में निरत लगे रहना चाहिए, नहीं तो ये दुनिया तब भी चलती है और अब भी चलती रहेगी। हम रहे नाम मोहब्बत रहेगी, हम रहे नाम मोहब्बत रहेगी, हम रहे नाम मोहब्बत रहेगी,
मेरे नाम मोहब्बत रहेगी, रास्ता अपनी दुनिया कहेगी, रास्ता अपनी दुनिया कहेगी, रास्ता अपनी दुनिया कहेगी, रास्ता अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, क्यों भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं, साथ लेती नहीं, साथ देती नहीं, साथ लेती नहीं, साथ देती नहीं, साथ लेती नहीं, साथ देते नहीं, साथ लेते नहीं। ये किसी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। अपनी अपनी बोलियां सब बोल के उड़ जाएंगे, हम बाद वाहे क्या करें देखते रह जाएंगे। हम सब आते हैं और चले जाते हैं, कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो किसी को रोक सके। जैसे किसी बाग में पक्षियों को भगाने के लिए कोई चौकीदार रखा हुआ होता है, किंतु पक्षी आते हैं, दाना चुप करके उड़ जाते हैं और वो बाग वहाँ देखते रह जाता है कि पक्षी यहाँ से दाना चुप करके भी चले गए। और इसी तरह जब यहाँ से कोई चले जाता है तो हम उस बाग वाही की तरह हो जाते हैं, हमारे हाथ खड़े हो जाते हैं, हमारे प्रयत्न रह जाते हैं, हम कितना ताकत लगा दें, कितना प्रयत्न कर दें, लेकिन होना तो वही होता है जो उस विधि को मंजूर होता है। दुनिया है एक हकीकत पुरानी, दुनिया है एक हकीकत पुरानी, दुनिया है एक हकीकत पुरानी, दुनिया है एक हकीकत पुरानी। चलते रहना है उसकी रवानी, चलते रहता है उसकी जवानी, चलते रहना है उसकी रवानी, चलते रहना है उसकी जवानी। हर्ष पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है जिंदगी का। साथ देती नहीं, साथ लेती नहीं, साथ देते नहीं, साथ लेते नहीं, वो साथ देती नहीं, साथ लेती नहीं, साथ देते नहीं, साथ लेते नहीं। ये किसी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इसीलिए कहा गया है, हमारे शास्त्र कहते हैं दुर्लभ मानस होते हो बेनाम क्षण भंगुरा। ये जो मनुष्य देह है ये दुर्लभ देह है, ये हमें ऐसे ही प्राप्त नहीं होती है। एका पशु यदि विप्र एक एव ही नश्यति। हमारे सब ग्रंथ और सभी पुराणों में शास्त्रों ने हमें एक बात दी, चेतावनी भी दी है, एक बात में समझाया भी है, कहा है कि मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही चला जाता है। इस दुनिया में कोई एक ऐसी वस्तु नहीं है जो मनुष्य यहाँ से साथ ले जा सके, लेकिन एक ऐसी चीज है जो मनुष्य अपने साथ यहाँ से ले जा सकता है। नहीं तो उस बात को छोड़ करके अन्य कोई ऐसी सीख की नोक के जितना भी हम यहाँ से अपने साथ नहीं ले जा सकते। लेकिन धर्म एक ऐसा है जो मनुष्य के साथ युगों युगों तक रहता है। धर्म मनुष्य का कभी प्यार नहीं करता, इसलिए हमेशा हमको धर्म का संग्रह करना है, पुण्य को करना है। चलो आज करते हैं दादू दादी से बातें, जिनके साथ बिताई है हमने सारी
मेरी प्यारी दादी माँ, कैसे शुक्रिया करूं मैं उस खुदा का जिसने आपको बनाया। मालूम है मुझे, देख रहे हो प्यार से हमको, उन्हीं से हमारा कुल, वही हमारे दिल की जान है। दादू दादी की खट्टी मीठी नोकझोंक तो चलती रहती थी, पर उसके पीछे प्यार जो छुपा था वो अलग सा ही था। दादी माँ के पिज्जा खाने पर दादू का ये कहना, जाओ दादी नू कोक ले आके दो। अब सोचो तो ऐसा लगता है कि ये पल अब कभी वापस ही नहीं आएंगे। छोड़ कर आना पड़ा कंधे पर रखकर हमें, अभी जिनको पलकों पर बैठाना था। सपनों में भी आते हो तो अभी भी बस हमारी ही फिक्र करते हो। कहाँ ढूंढेंगे हम आपको जो धूप में खुद और छाया में हमें रखते हो। माँ बाप का तो सर पर हाथ ही काफी होता है, पर दादू दादी की तो सिर्फ दुआ ही काफी होती है। आपने हमें जिंदगी में सब कुछ सिखाया, बस अपने बिना जीना नहीं सिखाया। फिर बना क्यों नहीं देते एक रास्ता जहाँ से आपको देख सके, मिल सके और दोबारा हमें हो सके। Miss you, Daddy and Fatima. Still can't believe you both are not with us. The only thing makes me feel better is that they are still together in heaven. दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपनी जिंदगी की सारी खुशियाँ कुर्बान कर देते हैं। परिस्थितियाँ जैसी भी हो, हमारे माता पिता ने हमारे ऊपर कभी आँच नहीं आने दी। हमारे मम्मी पापा ने हमारी तरक्की के लिए दिन रात अपना आशीर्वाद, सुझाव और हर तरह की तन मन धन से हमारी सहायता की। उन्होंने सारी जिंदगी किसी कमी का एहसास नहीं होने दिया। मम्मी की ममता उनकी आंखों में समुद्र से अधिक मैंने महसूस हो पाई है। पिताजी जब भी कुछ सलाह और गाइड करते थे, हमें 100% लाभ और आराम देने वाली होती थी। उनकी दूरदर्शिता का कोई भी कंपैरिजन और मुकाबला नहीं था। हमारे घर हर संकट में बच्ची की तरह हमारा हम साया बनकर हमें फूलों की सेज का दुलार देते रहे हैं। जीवन में कितनी आंधियां तूफान मुसीबतों में उनके से हमारा बाल भी बांधता नहीं हुआ। हम ठंडी मीठी दुलार में अपना जीवन में आनंद का अनुभव करते रहे हैं। अचानक भगवान की विधि का विधान, जिस पर किसी का कोई मर्जी नहीं चलती, उन्होंने हमारे मम्मी डैडी जी को अपने चरणों में बुला लिया। शायद भगवान को उनकी जरूरत हमारे से अधिक नहीं होगी, परंतु हमें अपने मम्मी डैडी की संसारिक और अलौकिक आशीर्वाद की कमी हमेशा बनी रहेगी। फिर भी हम आशावाद हैं कि भगवान में रहकर भगवान रूपी आत्मा अपना स्नेह, कृपा, आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बनाए रखेंगे। इस संकट की घड़ी में हमारे गुरु ने सभी बड़े बुजुर्ग, चाचा चाची, मामा मामी, मौसी मौसा, फूफा जी और अन्य सभी सगे संबंधी, भाई बहन, जीजा जी, दोस्त आदि आदि से मेरा निवेदन है कि वो हमारे मम्मी डैडी की तरह अपना आशीर्वाद बनाए और स्नेह और प्यार सदैव हमारे ऊपर बनाए रखे, जो हम इस दुख को सहन सके। थैंक यू उसके लिए, एंड थैंक यू आप सब लोगों का जिसने उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे उपस्थित है। डैडी ना हमारे एक सूरज की तरह थे, सबको तपाते थे और सबको उनको स्ट्रॉन्ग बनाने की बहुत आदत थी। हर बंदे को उन्होंने स्ट्रॉन्ग बनाया अपने आसपास। दादी माँ वो पेड़ की तरह थे जो पीछे परछाई की तरह हमें संभालते थे। उन्होंने जितना भी संभाला उतना किसी ने नहीं संभाला। मैं 2 इंसिडेंट की शेयर करने वाला हूँ इंडिविजुअली। एक बार क्या हुआ, मैं अपने दादाजी को बोला कि आपको शूज लेके देने, नया ब्रांड खुला था यहाँ पे, उनको लेके गया। मैं वो शूज के प्राइस देखने पड़े अपने लिए कि उनको शूज देखने से प्राइस मेरे दिमाग में प्राइस क्यों देखने हैं, वो उनको ये चीजें नहीं देखनी चाहिए। उन्होंने अपने लिए शू नहीं लिया। मेरे को थोड़ा गुस्सा आना शुरू हो गया दिमाग में कि क्यों ऐसे कर रहे हैं वो। एंड उन्होंने फिर साइड पे जाकर ना रैक पे शू देखा, कहते हैं कि तेरे लिए ना ये सही लग रहा है, ये पैक कर दो। उस 1 सेकंड में ना मुझे फील हुआ कि वो शू की कीमत उससे डबल थी जितने शू की कीमत वो देख रहे थे। वैसा प्यार कोई जिंदगी में मुझे नहीं दे पाएगा।
दादी माँ हॉस्पिटल में जब थे, हॉस्पिटल में उनकी तबीयत इतनी खराब थी कि वो चल के बाथरूम नहीं जा सकते थे। रात को मैं साथ में सो रहा था उनको मैंने बोला दादी माँ मुझे उठा देना, जैसे ही आपको बाथरूम आएगा कोई भी दिक्कत नहीं मुझे उठाना। वो 5 बार बाथरूम के लिए उठे, 5 बार खुद चल के बाथरूम की कोशिश की, इसकी नींद ना खराब हो। मेरे दादी माँ का प्यार इतना ज्यादा था दूसरों के लिए, मैं तो सिर्फ यही दुआ चाहता हूँ कि वो खुश रहे। मैं इस चीज के लिए थोड़ा सा लकी फील करता हूँ कि वो दोनों साथ में हेवन में। इससे ज्यादा बेटर तुम दोनों के लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उन दोनों के बिना एक जाना भी यहाँ रहता, उनकी लाइफ टफ रहती, क्योंकि प्यार उनका इतना ज्यादा था एक दूसरे के लिए कि वो कंपैरिजन ही नहीं था उसका। बाकी आप सब उनको ब्लेसिंग्स देना जैसे उन्होंने आप सबको ब्लेसिंग्स दी थी, जैसे हमें ब्लेसिंग्स दी थी। थैंक यू सो मच। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अंजनी वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कंठित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मुकुट गले साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप विद्यावान गणियत चातुर। राम काज करते तो आकर, प्रभु चरित सुनिए को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिरहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे। रामचंद्र के काज सवारे, लाए सतीवन लगन जियाए। सीता रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम यश गावे, हस कहि सत कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कर सके कहाँ पे। तुम पुकार सुनी महि मीरा, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर पे सब जग जाना। युग सहस्त्र दूषण परमानो, नीक ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जगत नाम विजय अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे जेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू तुम डरना। आपन तेज सहारो राखै, तीनों लोक राखते पापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वदन ध्यान बुलावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई आवे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हस्त सिद्धि औषधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन नाम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाए, जहाँ धर्म हरि भक्त कहाई। और देवता जितना धरई, हनुमत से ही सबर सुख करे। संकट कटे निके सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंद महासुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साधी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि केरा, कीजे नाथ हृदय मान डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर
सभी आए हुए लोगों का परिवार धन्यवाद करता है कि आप सबने इस संकट और दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े होकर के जो अमूल्य जीवन का अमूल्य समय निकाल करके आप आए हैं। आप सबका परिवार धन्यवादी रहेगा और आप सबका हमेशा धन्यवादी रहेगा। इसी के साथ मैं देवगत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा इन दोनों को कई जन्मों तक साथ साथ ही रखना। जिस तरह ये अभी दिए हैं उसी तरह इनका पुनर्जन्म भी साथ साथ हो, यही प्रार्थना करता हूँ और परिवार के लिए सुख शांति की कामना करता हूँ। और अपनी ओर से इन सभी को मैं यही कहना चाहूँगा, पहले भी कहता आया हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि वो आपसे दूर नहीं हैं, वो आप में हैं। इस बात को हमेशा रखें और उनके लिए सदैव अब आगे से रोना नहीं है। जब भी उनकी याद आए तो उनके लिए प्रार्थना करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। इसी के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।